Welcome, my dear brothers and sisters, sons and daughters, to another teaching series on the Rose for Jesus. यीशु के गुलाब के इस सत्र में मेरे प्रिय भाइयों बहनों बेटे बेटियां स्वागत करता हूं। We began last week on this new series and we are studying about the bridal makeup. पिछले हफ्ते हमने ये नई शिक्षा शुरुआत किया कि दुल्हन की तैयारी के बारे में। Last week we saw that a bride should make herself ready to meet the bridegroom. पिछले हफ्ते हमने देखा कि एक दुल्हन को अपने आप को तैयार करना है अपने दुल्हा से मुलाकात करने के लिए। So from this week onwards we are going to study about how the bride should make herself ready. और इस हफ्ते से हम देखने वाले हैं कि कैसे एक दुल्हन अपने आप को तैयार कर सकती है। About more than 20 years ago, I was speaking at a conference one day. 20 साल पहले जो है एक सम्मेलन में मैं प्रचार कर रहा था। At that time, the word of the Lord came unto me. उस वक्त परमेश्वर के वचन आया, I want you to share not only on the beauty of the Lord, but also on the beauty that I desire from my bride. और परमेश्वर ने मुझे कहा कि सिखा सिर्फ मात्र परमेश्वर की सुंदरता के लिए नहीं मगर क्या सुंदरता मैं अपनी दुल्हन से चाहता हूँ उसकी भी करें। Then I began to pray and ask the Lord how to share that, what it means. मैं प्रार्थना करने और प्रभु से मांगने लगा कि कैसे मैं उसे बांटूं और उसका मतलब क्या है। As I was praying, I saw a vision. प्रार्थना करते समय एक दर्शन देखा I saw a bride so beautifully dressed. और वहाँ मैं एक दुल्हन को देखा अच्छी सुंदर तरीके से कपड़े पहनी हुई थी। And on top of her bridal clothes, she had a veil over her face. अपने उस दुल्हन के वस्त्र के ऊपर जो है अपने चेहरे पर पर्दा लगा रखी थी। And then she walked into the bridal bedchamber to meet the bridegroom. और वो जो है उस रास्ते पे चलने लगी अपने उस दुल्हा से मुलाकात करने के लिए। And when she came before the bridegroom, जब वो अपने दुल्हा के सामने आई, and he lifted up the veil, जब उसने उस घूंघट को उठाया and he saw her face in all its beauty. और उसने अपने चेहरे को उसकी चेहरे को पूर्ण सुंदरता से देखा। Now concerning this, we read in Song of Solomon chapter 2 verse 14. और इस विषय में श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसके दूसरा अध्याय 14 पद में पढ़ते हैं। O my dove, in the clefts of the rock, in the secret places of the cliff, let me see your face. Let me hear your voice, for your voice is sweet and your face is lovely. हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में तेरा मुख मुझे देखने दे, तेरे बोल मुझे सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। See, the bridegroom is asking, let me see your face. यहाँ पे देखिए दूल्हा पूछ रहा है कि मैं आपकी चेहरे को देखने दीजिए, Let me hear your voice. आपकी आवाज सुनने दीजिए। Reading this, it reminds me of one thing that takes place in our culture. इसे पढ़ते वक्त हमारे संस्कृति में जो एक बात होती है मुझे याद आता है। You know, when a prospective groom goes to see a girl in their house, आप जानते होंगे जब दूल्हा जो है अपने दुल्हन को देखने के लिए उनके घर में जाता है, the groom's family may look at the girl and said, do you know how to sing? और जो है दुल्हा के जो परिवार वाले कहते हैं कि दुल्हन से कि आप गीत गाना जानती हैं। Maybe from this scripture they learned that. हो सकता है कि इन वचनों से उन्होंने सुना होगा, Because the Shunammite's voice is so sweet क्योंकि वो शुनेमी की जो आवाज थी बहुत मीठा था, and her face is so lovely to look upon. उसकी चेहरा इतना सुंदर है देखने के लिए। When I saw this vision, the word of the Lord came unto me saying like this, जब इस दर्शन को देखा तो परमेश्वर के वचन मेरे पास इस प्रकार आया, I am preparing my bride for myself. मैं अपने लिए एक दुल्हन तैयार कर रहा हूँ। Please note that. उसे नियुक्त कर लीजिए। I am preparing my bride for myself. मैं अपने लिए एक दुल्हन तैयार कर रहा हूँ। Why? क्यों? Because I am coming soon. क्योंकि मैं जल्द आने वाला हूँ, Because he is coming very soon. क्योंकि वो जल्द ही आने वाले हैं। He himself is now preparing his bride. वो स्वयं जो है अपनी दुल्हन की तैयारी कर रहे हैं। How does the preparation take place? ये तैयारी कैसे होने लगता है? This question is asked to many young daughters who plan to get married. और ये सवाल जब जो हर एक जो महिला से पूछा जाता है जो शादी की तैयारी कर रहे हैं, As soon as the wedding plans are made and the date is fixed, जब शादी की तारीख तय की जाती है तुरंत ये तैयारियां शुरू की जाती है। some parents may stop the girl from going
further to work. कुछ माता पिता अपने बेटियों को जो है काम में जाने के भी रोक देते हैं। We had a staff in our organization many years ago. कुछ साल पहले हमारे संस्था में एक स्टाफ थी। She was a lean girl, वो बहुत पतली लड़की थी। and the date was fixed for her marriage. उनके शादी के लिए तारीख तय कर चुका है। 1 month before the wedding, her mother stopped her from going to work. और 1 महीने पहले ही उनके माँ ने उन्हें रोक दिया काम पे जाने के लिए। This girl has been a wonderful, faithful worker. और ये बेटी बहुत ही एक विश्वास योग्य बेटी थी कार्य में। So I was very saddened to see her leave. और मैं बहुत दुखी था कि इसकी छुट्टियों को देखने के लिए। So I asked her, why do you need to stop? Because your wedding is still 1 month away. मैंने उनसे पूछने लगा तभी तो 1 महीने बाकी है, अभी क्यों छुट्टी ले रही हैं? I said, no uncle, my mother said that I'm very lean. I should eat more so that I will be a little bit fatter for the wedding. और कहने लगी नहीं अंकल जी, मेरी माँ मना करती है, वो कहती है मैं तो बहुत पतली हूँ और 1 महीने अच्छे से खाकर थोड़ा बहुत मैं मोटा होना है। So in the same way, every girl goes through a preparation process. और इसी रीति से हर एक महिलाएं जो है एक तैयारी की प्रक्रिया में जाती हैं। And a week or two before the actual wedding day, they may go for all kinds of beauty treatments. और शादी के दिन के 1-2 हफ्ते पहले ही जो है वो सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए चली जाती हैं। Even on the day of the wedding, they'll go through several hours of ब्यूटिफाइंग प्रोसेस। और शादी के दिन में भी जो है कई घंटों की जो है वो सुंदरता की प्रक्रिया में जाती हैं। सो देयर इज ए प्रोसेस ऑफ ब्यूटिफिकेशन। हाँ, एक तरीका है कि सुंदर करने की एक प्रक्रिया है। इज देयर आल्सो ए स्पिरिचुअल साइड टू दिस? क्या इसकी एक आत्मिक दर्शन भी है? सर्टेनली देयर इज। हाँ, निश्चय है। नाउ आई वांट यू टू टर्न योर बाइबल टू एस्टर चैप्टर 2 वर्स 12। और मैं चाहता हूँ अपने बाइबल को आप एस्तर उसके 2 अध्याय 12 पद खोलने। दिस इज अ बाइबल स्टडी एंड नॉट जस्ट preaching message. और ये बाइबल अध्ययन है, एक संदेश नहीं है प्रचार का। You can also take all these teachings and teach in your own church. आप ये सारे शिक्षा को लेकर अपनी कलीसिया में शिक्षा दे सकते हैं। So are you ready with Esther chapter 2 verse 12? क्या आप तैयार हैं एस्तर 2 अध्याय के 12 पद के साथ? Each young woman's turn came to go in to King Ahasuerus after she had completed 12 months preparation according to the regulations for the woman. For thus were the days of their preparation apportioned, 6 months with oil of myrrh, and 6 months with perfumes and preparations for beautifying women. जब एक एक कन्या की बारी हुई कि वह श्रेयस राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके 7 स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया जाता था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का और सामान लगाया जाता था। Look at this scripture. वचन को देखिए। Each young woman went through 12 months of preparation. हर एक जवान कुमारी जो है 12 महीने की तैयारी में गई। For a 1 day, 1 moment audience with the king. और एक दिन के अवसर के लिए और लोगों और राजा के सामने जाने के लिए They went through 12 months of preparation. वे 12 महीने की जो है तैयारी में गई। We need to pause here a while. यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुकना है। And I want you to ponder this deeply now. और मैं चाहता हूँ इसमें गहराई से ध्यान दें। For just a day appointment with the king, a woman went through 12 months of preparation. एक दिन की भेंट जो राजा के साथ था उसके लिए वो 12 महीने तक तैयारी के लिए गई। How much more should we prepare ourselves for a lifetime living together with the King of Kings? कितना तक जो है हमें अपने आप को तैयार करना है कि उस राजाओं के राजा परमेश्वर के साथ जो अनंत काल के लिए हमें रहना हो। Ask yourself this question now. इस सवाल को अपने आप से पूछ के देखिए। Or this is a good question for a group discussion. और ये जो है सामूहिक विचार करने के लिए एक अच्छी सवाल है। I perceive in my spirit right now. मैं अपने आत्मा में प्रेरित किया जा रहा हूँ। It is the desire of the Holy Spirit that many pastors who are watching this program and many youth leaders and women ministers who are watching this program take down all these notes and teach them in your fellowship. हर एक जो पासवान लोग, हर एक जो युवा की अगुवे, हर एक महिला की अगुवे जो है परमेश्वर चाहता है कि इन शिक्षाओं को आप नियुक्त कर लें। Instead of just preaching as a message, you can use it as a
discussion. आप सिर्फ एक संदेश के समान प्रचार करने से बेहतर होगा झुंड में इसकी विचार करने के लिए इस्तेमाल करें। Even the questions that I ask, सवाल जो मैं आपसे पूछता हूँ, you can use it as a question for discussion. आप इस सवालों का इस्तेमाल कर सकते हैं आपस में विचार करने के लिए। And look at the months of preparation. यहाँ पे उन महीनों की तैयारी को देखिए। 12 months that has been divided into 2 periods. 12 महीने जो है 2 भाग में बांटा जाता है। 6 months with oil of myrrh 6 महीने तक जो है गंधर्वीय तेल से है, and the other 6 months with different kinds of spices and perfumes. और अगला 6 महीना जो है सुगंधित वर्गों के साथ है। I read some historical background about this, और इसके जो है हम ऐतिहासिक पिछले हिस्से को हमने देखा, and during the 6 months of preparation of the oil of myrrh, और 6 महीने की जो गंधर्वीय तेल की जो तैयारी है, there is a small pool like a bathtub which is filled with oil of myrrh. और एक छोटी सी कुंड जैसे कि नहाने की तालाब के जैसे वो जो उस तेल से भरा जाता है। And the woman will go and sit and immerse in the pool for several hours each day. और वो लड़कियां जो है उसके अंदर जाकर बैठ जाती थी कई घंटों तक। These oils enter into her skin और ये तेल उनके शरीर के अंदर जाता है and will bring out dead cells. और वो मरा हुआ अंगों को निकाल देता है। It will cause a dying in the cells that are not productive, और वो जो अणु जो कार्य नहीं कर रही हैं, and it will bring out all those dead. और वो जो मरा हुआ उस अणुओं को जो बाहर निकाल देता है It will penetrate deep into her skin और चमड़े की गहराई के अंदर जाता है to cause a transformation. एक परिवर्तन को लाने के लिए। And then the other 6 months with different kinds of perfumes and spices. अगला 6 महीने जो है एक अलग अलग सुगंध वर्गों से उनके इस्तेमाल की जाती हैं। She applies herself with all these perfumes and immerses in them again for several hours each day for 6 long months. और वो जो है इन सारे सुगंध वर्ग को अपने शरीर में डालकर जो है उसमें डूब जाती कई घंटों तक और कई दिन ऐसे चलता है। And after the period, जब वो समय के बाद she smells with the perfume. और उस सुगंधित वर्ग के साथ उनकी सुगंध आने लगता है। And it will be in her and on her even for several months after that. और उसके अंदर और उसके बाहर भी उसके बाद कई महीनों तक भी रहता है। Today there are so many different kinds of fragrances and scents that we can buy from the shops. और आज के दिनों में कई प्रकार की जो है हम सुगंधित वर्ग को और सेंट को हम खरीदते हैं। And we spray them on our skin and on our clothes when we go out. जब हम बाहर जाते हैं अपने चमड़े पर अपने कपड़े के ऊपर लगा लेते हैं। And whoever passes by, they smell good. और जब भी उनके बगल से कोई गुजरता है उनका सुगंध अच्छा लगता है। But it may last only for a few hours. वो हो सकता है सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए रहें। And after that, your normal smelly self. और बाद में उसकी अपनी आप की सुगंध आने लगता है। But look at these ladies in Esther's time. मगर एस्तर के समय की इन लड़कियों को देखिए। The perfume are not on top of their body, ये जो सुगंध जो है सिर्फ उनके शरीर के ऊपर नहीं, inside their skin. मगर उनके चमड़े के अंदर है। So this is something we need to learn. और इसे हमें सीखना है। The process of spiritual beautification is internal rather than external. और जो आत्मिक सुंदरता की जो प्रक्रिया है वो अंदरूनी तरीके से है, ना कि बाहरी तरीके से। That is why the scriptures in the epistle to Peter states that let it not be just the external adornment of the body, but be adorned in the spirit and in the heart. और इसलिए वचन हम देखते हैं पत्रस के पत्री में कि हम बाहरी रूप की शारीरिक सुंदरता पर ना ध्यान दें मगर अंदरूनी सुंदरता पर ध्यान दें। The apostle Peter did not say all that was wrong. और पत्रस जो है वो ऐसे नहीं कहते कि सब बातें गलत है। Because as it is today, so was it in his time. Women spend hours just beautifying themselves. जैसे आज के दिन में है वैसे ही प्रेरित पत्रस के समय का था कि औरतें कई घंटे व्यतीत करती हैं अपनी सुंदरता के लिए। Today we spend hours beautifying ourselves, but we have a rotten nature. आज जो है हम कई घंटे जो है व्यतीत करते हैं अपने सुंदरता के लिए मगर हमारे स्वभाव सूखा हुआ स्वभाव है। People may wear a certain colored dress or sari or shirt and portray themselves as if
they are detached from the world. और लोग जो है ऐसे रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं या साड़ियाँ पहनते हैं ये दिखाने के लिए कि वो संसार से अलग हैं। They may not even be wearing gold or other kinds of jewelries, हो सकता है कि बाकी गहने ना पहनते हो, because they take the Apostle Peter's writings to the very extreme. और क्योंकि जो है प्रेरित पतरस की लिखी हुई लेख को बहुत दूसरी विपरीत तक ले जाते हैं। But these people who has this external form of godliness, और इन लोग जो बाहरी रूप की जो पवित्रता को रखते हैं, but when it comes to marriage matter, they may ask for gold from the bride's family or different kinds of worldly material things. और जब शादी की बात आती है तो दुल्हन के परिवार से कई प्रकार के जो सोने गहने मांगते हैं और कई सारी सांसारिक वस्तुएं मांगते हैं। So when you look at their actions, it is contrary to the certain colored clothes that they are wearing for their ministry. और अगर आप उनके कार्य को देखेंगे वो उसकी विपरीत लगता है कि जैसे जो वस्त्र उनके सेवा के लिए पहना है। This is what the Holy Bible calls to be hypocrisy. और इसी को जो है पवित्र शास्त्र जो है दिखावा कहता है। My dearly beloved sons and daughters प्रिय बेटे और बेटियां and fellow ministers of God, और मेरे सेवक लोग, we must put away all this hypocrisy out of our lives. ये सारे दिखावा जो हमारे जिंदगी से दूर करना है। This is the leaven that we must remove from our lives. ये एक ऐसे कमीरी है जो हमारी जिंदगी से दूर करना है। You may recall the warning of the Lord Jesus Christ, आप यीशु मसीह की चेतावनी को याद कर सकते हैं, where he said, beware of the Pharisees' leaven. और वहाँ कहता है कि सतर्क रहो जो फरीसियों की कमीरी है। What is that? उसकी मतलब क्या है? Hypocrisy. दिखावा है, That was their problem. और वही उनकी समस्या है। Hypocrisy was in them completely. दिखावा उनके अंदर संपूर्ण रीति से था। You know, the psalmist said like this, भजनकार ने कहा, that the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय की मनन जो है तेरे लिए प्रश्न योग्य होने पाए। The words of our mouth is what is external. और हमारे मुंह के शब्द वो है बाहर रूप की बात है। Meditation of the heart is internal. मन की मनन जो है वो अंदरूनी बात है। So what you proclaim externally or what you proclaim to live externally must be in sync and oneness with what is internal. और बाहर जो जिस चीज की आप घोषणा करते हैं और जिस जीवन शैली के बारे में बात करते हैं वो आपकी अंदरूनी जो व्यक्तित्व है उसके साथ जुड़ा रहना है। You know, people use leaven in food to cause it to grow bigger in a very intentional manner. लोग जानबूझकर जो है कमीरी को भोजन में डाल देते हैं ताकि वो पदार्थ जो है बढ़ने पाए। But that is not correct in the spiritual sense. मगर आत्मिक तत्व में वो सही नहीं है। You know, people use yeast to leaven a bread. और लोग खमीरी का इस्तेमाल करते हैं कि वो रोटी को जो है खमीरी ले आए। That is okay for the bread. और वो रोटी के लिए ठीक है। But that yeast is spiritually pride. When it comes into our life as a leaven, it puffs us up. और वो खमीरी घमंड है, जब हम अपने जीवन में ले आते हैं हमारे जीवन को उभर देता है। The Spirit of the Lord expressly tells me right now that this leaven must be removed far from those intending to be a bride. और परमेश्वर की आत्मा मुझे अभी जो है प्रेरित करा रहा है कि बताओ करके कि अपनी दुल्हन के अंदर से इस खमरी जो घमंड है से दूर कर दे कई दूर तक। Every church that wants itself to be ready as the bride must also remove this leaven out from their midst. हर एक कलीसिया जो चाहता है कि यीशु के लिए दुल्हन बने कि वो अपने जीवन में से इस कमीरी को जो उन्हें कमीरी कर देता है उसे दूर कर दें। So now a question for discussion before we end this subject. और इस विषय को खत्म करने से पहले हमारे विचार के लिए एक सवाल, What is the leaven in my life? मेरे जीवन में वो कमीरी क्या है? What is the leaven in my church? मेरे कलीसिया में वो कमीरी क्या है? Make an honest analysis of your heart and your church. और एक सच्चाई जांच अपने हृदय की और कलीसिया की करिए, Then remove them. और बाद में उसे निकालिए। So this is a discussion. और ये आपके विचार के लिए है। So we bring this episode to a close right now इस सत्र को हम इसमें खत्म करते हैं। and we'll meet next week. हम अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।